ہم لوگ بات کر رہے تھے سیرہ آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ سیرت کو ہم چار بڑے اسپیکٹس میں دیکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سیرت ہم پڑھتے ہیں اس کا بیسیکلی کنسیپٹ کیا ہے، اس کا سکوپ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ دوسری چیز ہم نے جو سیرت کے اندر پڑھنی تھی وہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی دنیا اور بعد کی دنیا میں کیا بڑا فرق پڑا، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بڑی چیز ہم لوگوں نے جو تیسرا اسپیکٹ تھا سیرت کا، وہ ہم نے یہ دیکھنا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پورے سینیریو کو چینج کس طرح سے کیا، اور آخری پوائنٹ جو ہم نے دیکھنا ہے وہ آبویسلی ہم پوری سیرت کو مکمل پڑھنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیسیکلی کون کون سی ویلیوز کنوے کی ان لائٹ آف ریولیشن ٹو دا ہیومینٹی، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ہمارا پہلا سٹیپ تو ہو چکا تھا سیرت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم سیرت کہتے ہیں، اسی میں ہم حدیث بھی پڑھتے ہیں، سنت بھی پڑھتے ہیں، پھر اس کے دو بڑے حصے تھے مغازی اور سیر، ٹھیک ہے۔ اور اب آگے چل کے پھر ہم نے جو بیفور دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا، ہم نے دو سیگمنٹس دیکھے تھے۔ پہلی چیز ہم نے یہ دیکھی تھی کہ اس وقت پلانٹ ارتھ کے اوپر جو ہیومن پاپولیشن تھی اس کی سوشل، اکنامک، ریلیجیس سٹیٹس اس کا تھا کیا۔ رومن امپائر میں کیا تھا، پرشین امپائر میں کیا تھا، انڈیا میں کیا تھا، یورپ میں کیا تھا، اور افریقہ میں کیا تھا، وہ ہم نے تھوڑا سا اس کا جسٹ ٹپ آف دا آئس برگ ہم لوگوں نے دیکھا تھا۔ اور اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا کہ عربس جن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا گیا تھا، ان کو جیو اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ وہیں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جائے۔ پھر اس کی جو ہسٹوریکل امپورٹنس رہی ہیومن ہسٹری میں وہ بھی ہم نے دیکھا، اور جو عربس تھے ان کے نیشنل ٹریٹس جو تھے، عربس کے جو انڈیویجولز رہے یا پوری بڑی بڑی فیملیز رہیں، ان کے ٹریٹس ہم نے دیکھا تھا کہ ان میں کیا ٹریٹس تھے، کیا خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بڑی سعادت عطا کی، ٹھیک ہے۔ اور آج بھی اگر ہم وہ ٹریٹس اپنے اندر اسٹیبلش کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ بڑے اچھے فیصلے صادر فرمائیں گے۔ تو یہ ہمارا پورا جو ابھی تک ہم لوگوں نے پڑھ رکھا ہے سیرت کے اندر، جو ہم نے پڑھا تھا اس کا ایک بریف سا آپ لوگوں کے سامنے میں نے اسکیچ رکھ دیا۔ اس میں کوئی چیز اگر رہ گئی ہو تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں ایٹ دی اینڈ آف دا سیشن، اور اگر کچھ نہیں رہتا میرے خیال سے تو اٹس مور دین انف۔ تو ہم اب آگے چلتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اینسیسٹرز کی، اور ایک بڑا ریزن ہم کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اینسیسٹرز کی بات کریں گے۔ اس میں ہمارے جو اورینٹلسٹ ہیں ان میں سے کسی نے لکھا تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر کفر نہ باشد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیملی بیک گراؤنڈ کوئی اسٹرانگ فیملی بیک گراؤنڈ نہیں تھا۔ تو ہم ہسٹوریکل ایویڈنسز کی بیس پہ دیکھیں گے کہ کوئی آدمی ایسی بات کیوں کر سکتا ہے اور کیسے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خیر، جواب تو اس کو دینا ضروری بھی نہیں ہے، کیونکہ اٹس اظہر من الشمس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے ہیں، اور بنو ہاشم کی ہسٹری کیا ہے یہ ایویڈنٹلی کلیئر بھی ہے۔ لیکن ہمارے سمجھنے کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ ایک انسان جو ہے نا وہ اپنے خاندان سے تین چیزیں انہیرٹ کرتا ہے۔ یہ نبی رحمت میں انہوں نے ابو الحسن علی ندوی نے لکھا، اور بڑا مزے کا پوائنٹ انہوں نے لکھا، کہتے ہیں کہ تین چیزیں کیا ہیں۔ نمبر ایک، فزیکل اپیئرنس، آپ کی سبلنگس کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے۔ بچے جو ہے نا وہ ہمارے ہاں عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ بیٹی جو ہے وہ ماں پہ گئی ہے، یہ باپ پہ گیا ہے، اس طرح کے الفاظ آپ نے دیکھے ہوں گے سوسائٹی میں۔ تو پہلی چیز فزیکل اپیئرنس بچہ ریسیو کرتا ہے، جینیٹکلی انہیرٹ کرتا ہے اپنے پیرنٹس سے۔ دوسری چیز جو بچہ انہیرٹ کرتا ہے وہ ہے ہیبٹس، ٹھیک ہے۔ آم، مطلب ہیبٹس میں کس طرح سے کہہ سکتے ہیں، کوئی چلتا کیسے ہے، بیٹھتا کیسے ہے، اٹھتا کیسے
है आम तौर पे, जो लाइक फादर लाइक सन कहा जाता है। और तीसरी चीज़ जो कोई इंसान अपने फैमिली से, अपने प्रेडिसेसर से इनहेरिट करता है, वो है उनकी मॉरल वैल्यूज़। तो इन तीन चीज़ों को हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली में किस तरह से ये तीन चीज़ें प्रीवेल हुई। तो ये हमारा आज का टॉपिक होगा। होपफुली ये पॉइंट हमारे लिए क्लियर है। तो अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का जो अरब था, उसका मैप आप लोगों के सामने मौजूद है, ठीक है जी। इसमें आप छोटी सी चीज़ देख लें, इसको चार बड़े हिस्सों में डिवाइड किया गया था। हिजाज, उरूज, तिहामा और नजद, ठीक है। यहाँ पे ये तिहामा का एरिया था, ये कोस्टल एरिया। इसके बीच में यहाँ पे हिजाज का एरिया आता था, जो तिहामा और नजद के दरमियान में था। और आपका जो वेस्टर्न साइड आ रही थी, ये पूरा एरिया अरूज कहलाता था, ठीक है। तो ये उस जमाने में अरब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस तरह से डिवाइड किया गया। ये मक्का, मदीना, बनु जुरहम, खुज़ा और बनु कैनका, कुरैज़ा, नज़ीर, ये पूरे जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन थी पॉपुलेशन की, ये नजरान। ये मैप मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और इन द लॉन्ग रन जब भी हम सीरत के हवाले से किसी इंसिडेंट की बात करेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बर्थ से लेके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डिमाइस तक, तो ये पूरा मैप आपको बड़ा काम देगा। और इसी के साथ एक मैप और देख लीजिएगा। इन दो मैप्स को जब हम कोइंसाइड करेंगे एक दूसरे के साथ, तो आपको समझ में आ जाएगी कि आज के मौके पे, मसलन अगर हम बात करेंगे गज़वे तबूक की, तो आज के ज़माने में वो तबूक कौन सी जगह पे है, उसके रूट्स कौन से लग रहे हैं, वहाँ नियरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं या सिटीज़ कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो मौजूदा दौर के अंदर, और मोर ओवर ये जो आपका यूनाइटेड अरब अमारात्स हैं, उसके साथ क्या रिलेशन बन रहा है हमारी हिस्ट्री का, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस मैप के अंदर समझ में आ जाएंगी। और इसी मैप के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एंसेस्टर्स की पूरी ज़िंदगी यहाँ पे गुजरी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एंसेस्टर्स में से एक एंसेस्टर थे कुसई, जिनका असली नाम जैद था। और कुसई को कुसई इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो मिस्र में गुजारा था, अपने बर्थ प्लेस से, या अपने क्या कहते हैं, होम टाउन से, मदरलैंड से दूर। तो जो आदमी दूर होता है किसी जगह से, उसको अरबी में कुस्सी कहते हैं। और उसी को अगर उसका निक नेम चेंज कर दिया जाए तो वो कुसई बनता है। तो हम वहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एंसेस्टर्स की हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। और उस हिस्ट्री के बाद आपको फिर वापस लेके आएंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थ के ऊपर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में जो बड़ी चीज़ है, वो आपके सामने ये मैप होना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरा जो नस्ब है वो अदनान तक तो ठीक है, लेकिन अदनान से पीछे जो नसाब हैं, उन्होंने बहुत गलतियां की हैं उस नस्ब के अंदर, ठीक है, फैमिली ट्री के अंदर। अब ये देख लें, अदनान के बेटे माद हैं। अदनान जो हैं ये इस्माईल अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के डिसेंडेंट्स में से एक हैं, ठीक है। माद, कनस, उसके बाद हैं जी मुज़र, फिर इलियास, फिर मुदरका, फिर खुज़ैमा, फिर किनाना, फिर किनाना से नज़र, और नज़र को ही जो है वो कुरैश भी कहा जाता है। फिर कुरैश के औलाद में से मालिक और फहर आ गए, ठीक है। अब फहर से आगे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चल रहा है ना, क्या कहते हैं उसको, शजरा नसब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने भूलना नहीं है, क्योंकि इसी में से हम चार बहुत बड़ी पर्सनैलिटीज़ की बात करेंगे और हिस्ट्री में उनके कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे, ठीक है। और वही आपने जहन में रखना है जो अबुल हसन नदवी ने कहा था कि तीन चीज़ें जो हैं वो एक जो ऑफस्प्रिंग होता है वो इनहेरिट करता है अपनी फैमिली से। अब फहर से गालिब से लुई हैं, फिर काब हैं, और ख्वाब से नज़ार हैं, फिर किलाब हैं, फिर किलाब से कुसई हैं,
یہ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ एक सहाबी की ज़बान से एक गैर मुस्लिम बादशाह के सामने किया गया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फॉलोअर्स आए हैं जिन्होंने हमारी सोसाइटी में फसाद मचा रखा है, तो इनको आप हमारे हवाले कर दें। तो जब नेगस ने उनको बुलाया तो उन्होंने कहा फ़बाअथ अल्लाहु इलैना रजुलन मारूफन नारिफु नसबहु। अल्लाह ताला ने हमारे दरमियान में एक इंसान को भेजा, हम जिसका नसब जानते हैं। व नारिफु वजहहु व मौलिदहु, हम उसकी शख्सियत से भी वाकिफ़ हैं और हमने देखा है ही टुक बर्थ इन आवर सोसाइटी, हमारे सामने ही बहुत बड़े खानवादे में पैदा हुआ। फ़अर्दुहु खैरु अर्दिना, वो जिस जगह पैदा हुआ वो हमारी शहरों से बड़ी मुकद्दस शहर है। वह हस्बुहु खैरु अहसाबिना, उसका जो ख़ानदान है वो हमारे ख़ानदानों से बहुत बुलंद और बरतर है। वह बैतुहु खैरु बुयूतिना, वो जिस फैमिली से जो उसका घर है, उसका अपना फैमिली है, वो हमारी फैमिली से बहुत बेहतर है। वह कबीला तो खैरु कबाइलिना, उसका कबीला हम सब के कबीलों से सबसे बेहतर है। वह हुआ नफ्सुहु काना खैरुना, वो पर्सनैलिटी में भी हम में सबसे बेहतरीन हस्ती हैं। अब देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हसब और उनके कबीले और उनके ख़ानदान के बारे में उनके ज़माने के लोग क्यों इतना ज़्यादा मानते थे। हम सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चार एंसेस्टर्स की बात करेंगे। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमीडिएट ग्रैंडफादर हैं अब्दुल मुत्तलिब, फिर इनके फादर हाशिम, फिर इनके फादर अब्द मनाफ, और फिर अब्द मनाफ के फादर कुसई। कुसई का असली नाम जैद था, मैं बता चुका हूँ कि इनको कुसई किस लिए कहा जाता है। फिर अब्द मनाफ जो कुसई के बेटे हैं उनका असली नाम मुगैरा था। और फिर अब्द मनाफ के चार बेटों में से एक बेटे हाशिम थे। ठीक है, चार बेटे कौन थे? अब्द शम्स, नौफल और मुत्तलिब, ये तीन भाई थे हाशिम के। ठीक है, और फिर हाशिम की आगे जो औलाद थी उनमें से अब्दुल मुत्तलिब जिनका असली नाम शैबा था, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग्रैंडफादर थे। हम कुसै की अगर बात करें तो आप लोगों को याद होगा मैंने आपको बताया था मक्का मुकरमा को जो पॉपुलेट करने वाली हस्ती हैं वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने, जिनको इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मक्का मुकरमा में छोड़ा था। ठीक है, और इनकी शादी बनु जुरहम में हुई। कुछ अरसा गुजरा तो बनु जुरहम ने बनी इस्माइल को या कुरैश को मक्का मुकरमा से बेदखल कर दिया। ठीक है, अब घूमते फिरते ये मुख्तलिफ जगहों पे जाके आबाद हो गए कुरैश के लोग। फिर इन्हीं कुरैश के अंदर अल्लाह ताला ने कुसई को पैदा किया, और कुसई मिस्र में थे। मिस्र में किसी ने इनको ताना दिया कि यार तुम तो यू आर एन आउट कास्ट ओवर है। गैरतमंद आदमी थे, इन्होंने अपनी वालदा से पूछा मुझे बताएं कि क्या सीन है। इन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारे वालिद का इंतकाल जब हुआ था तो मेरी शादी तुम्हारे सौतेले वालिद स्टेप फादर से हो गई और हम यहाँ पे आ गए। फिर इन्होंने कहा कि अगर आप मुझे इजाज़त देती हैं तो मैं मक्का मुकरमा जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, शौक से जाएं। ये आए तो बनु खुजा उस वक्त मक्का मुकरमा के ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड रखते थे। लेकिन कुसई की जब पर्सनैलिटी को देखा गया, उनके टैलेंट्स को देखा गया, तो आहिस्ता आहिस्ता कुसई की वजह से कुरैश के लोग जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वापस मक्का में इकट्ठे होना शुरू हो गए। और बनु जुरहुम को जिन्होंने मक्का मुकरमा से कुरैश को निकाला था, उनको फिर मक्का मुकरमा से निकाल दिया गया। और एक नरेशन के मुताबिक बनु जुरहुम जब मक्का से निकल रहे थे तो उन्होंने निकलते निकलते जमजम के कुएं को जो है ना वो तोड़ के या उसमें मट्टी वगैरह भर के तो उसको खत्म कर दिया था, वो जो भी जमजम का चश्मा था। तो इस वजह से जमजम जो है वो नापैद हो गया था। ठीक है, अब जब जमजम नापैद हो गया तो जो लोग हज करने के लिए आ रहे थे उनके लिए प्रॉब्लम ये हुआ कि पानी कहाँ से आएगा। तो कुसई ने उस वक्त जो है वो छह बड़े ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप एस्टेब्लिश किए मक्का मुकरमा के अंदर। पहला था रिफादा। रिफादा में उन्होंने कुरैश को मोटिवेट किया और उन्होंने कहा देखो ये जो हज करने के लिए लोग आते हैं ना, ये अल्लाह ताला के मेहमान होते हैं और हमें इनकी मेहमान नवाजी करनी चाहिए। तो एनुअली ये एक मरतबा फंड रेज होता था और उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये होता था कि हज में आए हुए लोगों को खाना खिलाया जाए और उनको पानी पिलाया जाए, उनको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो।
ठीक है। दूसरी चीज जो स्पेशली थी वो थी सिखाया, क्योंकि जमजम तो वहां पे खत्म हो गया, अब पानी कहाँ से लाया जाए। तो इन्होंने ये किया कि उसमें छोटे छोटे से पूल्स बनवा लिए, और पूल्स में ना उन्होंने चमड़ा लगवा दिया, वाटर प्रूफिंग की, और उसमें पानी भर देते थे, और उस पानी के बीच में समटाइम्स खजूरें और किशमिश वगैरह डाल देते थे, जिसकी वजह से पानी ज्यादा देर तक उसको स्टोर भी किया जा सकता था, उसका टेस्ट खराब नहीं होता था, बल्कि वो शरबत टाइप और ज्यादा अच्छा जो है ना, वो इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह भी उसमें होते हैं, तो वो हेल्थ के लिए भी ठीक होता था। तो ये पूरा सिस्टम जो था सिकाया, ये भी उसे ही ने एस्टेब्लिश किया। अब तीसरी चीज, चौथी और पांचवी, हिजाबा, क़ियादा और लिवा। हिजाबा जो था ये मक्का मुकरमा के ऊपर जो खाना काबा स्पेशली जो बिल्डिंग है उसके ऊपर चादरें वगैरह या गिलाफ वगैरह लगाना शुरू किया कुसई ने, उसके एहतराम में, उसके अदब में। ठीक है। क़ियादा और लिवा का बड़ा ताल्लुक है आपके दारुन नदवा से। सबसे पहला काम जो कुसई ने किया था बेसिकली वो नदवा का क़याम था। जैसे एक पार्लियामेंट होती है, एक शूराई निज़ाम इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया मक्का मुकरमा के अंदर, कि कभी भी हमने कोई डिसीजन करना है, चाहे वो एक इंटरनेशनल रिलेशन इस्टेब्लिश करने का हो, किसी वॉर का हो, किसी तरफ हमने आर्मी भेजनी है, तो उसका डिसीजन हम दारुन नदवा में बैठ के मशवरा करके करेंगे। और फिर उसी में डिसीजन ये होगा कि इस आर्मी को लीड कौन करेगा, सिपह सालार की सिलेक्शन जो है वो दारुन नदवा करेगा। ठीक है। और फिर साथ में उसको प्लाटून्स को लीड कौन करेगा, झंडा किसके पास होगा जंग का, क्योंकि आर्मी को एट दैट टाइम तीन बड़ी बटालियंस में डिवाइड किया जाता था, मेमना, मेसरा और कल्ब, और हर एक के पास अपना एक लिवा होता था। यानी एक सेंट्रल कमांड होती थी जिसको सिपा सालार कहते थे, और उस सिपा सालार के नीचे जो है वो फिर ब्रिगेड्स होती थी, उनके तीन ब्रिगेडियर्स होते थे। ठीक है। उसको लिवा कहते हैं। तो दारुन नदवा में ये डिसीजंस भी होते थे। तो ये पूरा का पूरा जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप था मक्का मुकरमा का, ये कुसई ने एस्टेब्लिश किया था, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एंसेस्टर्स में से थे। ना सिर्फ वो सेट एस्टेब्लिश किया, बल्कि कुरैश को पूरी अरब पेनिनसुला में जहां जहां कुरैश रहते थे उनको ला के वापस मक्का मुकरमा में आबाद किया। होपफुली यहाँ पे हमें वो कंट्रीब्यूशन समझ में आ रहा है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एंसेस्टर्स ने और फैमिलीज ने खाना काबा के अंदर आके लोगों के लिए वो कंट्रीब्यूशन किया। ठीक। ये हमने बात की कुसै बिन किलाब की, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एंसेस्टर थे, और हिस्टोरिकली इनका जो एरा बन रहा है वो 440 एडी बन रहा है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थ से कोई 130 135 साल पहले का एरा बन रहा है। ठीक है। इनके जो बेटे थे उनका नाम था अब्द मनाफ। ठीक है। अब अब्द मनाफ का जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो था, इन्होंने सिकाया और रिफादा को बहुत ज़्यादा डेवलप किया। ठीक है। और उसका पूरा एक सिस्टमाइज्ड सिस्टम बनाया। अब अब्द मनाफ ने एक और ड्यूटी असाइन की थी अपने चारों बेटों को, यानी हाशिम, नौफल, और अब्द शम्स और मुत्तलिब। ये इनके चार बेटे थे। इन्होंने इन चारों को एक ड्यूटी असाइन की थी कि यार, क्योंकि मक्का मुकरमा का कोई अपना प्रोडक्ट यूज तो था नहीं, अब अब्द मनाफ ने ये किया कि इन्होंने ड्यूटी असाइन की अपने चारों बेटों को कि आप जाएं और रोमन एम्पायर से, और नीचे यमन में जो अक्जूम की एम्पायर थी, इन लोगों से आप कुछ ट्रूस साइन करें, एमओयू साइन करें, ताकि हमें एक ट्रेडिंग रूट मिल जाए। तो इनमें से जो हाशिम थे, इन्होंने ऐसा किया कि ये इन एम्परर से मिले, रोमन एम्परर से भी, और नीचे एक्जूम के जो नेगस थे इनसे भी मिले। और इनसे मुलाकात करने के बाद इन्होंने ये कहा कि हमारा जो कुरैश या स्पेशली बनु हाशिम के जो लोग होंगे, इनको आप टोल फ्री
ٹریڈ کی اجازت دے دیں، اور ہاشم کی اتنی اسٹرانگ کمیونیکیشن سکلز تھیں کہ وہ لوگ مان گئے۔ اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف میں ذکر کیا ہے۔ اب قریش کے لوگوں نے، یا بنو ہاشم نے، یا اسپیشلی ہاشم نے جو اوپر رومن امپائر سے نارتھ میں بات کی تھی، تو انہوں نے صرف ان سے بات نہیں کی تھی، انہوں نے مکہ سے لے کے سیریا تک جتنے بھی بیچ میں قبیلے آتے ہیں ان سب کے ساتھ انہوں نے میٹنگز کی، اور میٹنگز کے بعد یہ چیز طے ہو گئی کہ بنو ہاشم کے یا قریش کے کسی بھی قافلے کے اوپر اس ان روٹس کے اوپر کوئی قبیلہ حملہ نہیں کرے، اور ان ریٹرن یہ لوگ ان کو اپنی سروسز پرووائڈ کرتے تھے۔ وہ سروسز کیا ہوتی تھی کہ ان کے جتنے بھی مرچنڈائز ہوتے تھے وہ وداؤٹ اینی پروفٹ، نو پروفٹ نو لاس بیس کے اوپر، یا نو پروفٹ بیس کے اوپر سوری، وہ ان کے مرچنڈائز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے تھے، ٹھیک ہے؟ یعنی ٹریولنگ ایکسپینسز تو اس میں ہوتے تھے، لیکن اس میں سے جو بھی ان کا شیئر بنتا تھا وہ نہیں لیتے تھے، وہ صرف اپنے پروڈیوس کے اوپر شیئر لیتے تھے۔ تو اس میوچل انڈرسٹینڈنگ سے انہوں نے نیچے یمن کی طرف بھی اور اوپر سیریا کی طرف بھی جو ہے نا وہ ایک بڑا سیف پیسج بنا لیا تھا۔ اور اس کا بڑا فائدہ ان کو یہ ہوا تھا کہ جو بھی مرچنٹس جو قریش سے بلونگ نہیں کرتے تھے، بنو ہاشم سے بلونگ نہیں کرتے تھے، وہ قریشیٹس کو یا بنو ہاشمس کو ہائر کرتے تھے کہ آپ ہمارے کاروان میں ہمارے ساتھ چلیں تاکہ ہمارا کاروان سیف اور سیکیور رہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا کیا کہہ سکتے ہیں احسان تھا ہاشم کا مکہ مکرمہ کے اوپر۔ اور ہاشم کو جن کا ایکچوئل نیم ہاشم تو نہیں تھا، عمر العلا کہتے ہیں ان کو، عمر العلا ان کا نام تھا اور ہاشم ان کا لقب تھا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک مرتبہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ فیمن پڑا، قحط پڑا مکہ مکرمہ کے اندر، اور کھانے پینے کی چیزیں جو تھیں نا وہ ملتی نہیں تھیں، اور حج کا سیزن آ گیا تو بنو ہاشم اسپیشلی اوپر پیلسٹائن گئے، اور فلسطین سے اونٹوں پہ گندم اور آٹا وغیرہ لاد کے لائے مکہ مکرمہ میں، اس کو پکوایا، خود اس کو اچھی طرح سے گوندھا، اس کی سرید بنوائی، اور سرید بنوا کے حاجیوں کو فری آف کاسٹ کھلایا۔ تو یہ جو روٹیوں کو توڑ کے جو چوری بنائی جاتی ہے نا، اس کی وجہ سے ہاشم کا نام ہاشم بن گیا، جو جس کا مطلب ہے چورا چورا کرنے والا، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے ہاشم ایک تو اپنی جنراسٹی کی وجہ سے، اور دوسرا اپنے حسن انتظام کی وجہ سے، مینیجریل سکلز کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ مشہور ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہاشم کے حوالے سے تھا۔ پھر ہاشم ایک کیونکہ مرچنٹ تھے، ایک مرتبہ مدینہ منورہ جا رہے تھے، تو مدینہ منورہ جاتے ہوئے سلمہ نام کی ایک خاتون، انہیں کہیں میلے میں ان کی ملاقات ہوئی، تو شی فیسینیٹڈ ہم، اور انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا، سلمہ نے ایکسیپٹ کیا، اور ہاشم کی شادی ہو گئی سلمہ سے۔ اب شادی کے بعد ہاشم آگے سیریا کی طرف جانا تھا، انہوں نے وہ وہاں آگے چلے گئے، لیکن ہوا یہ کہ وہاں سیریا کی طرف جا کے ہاشم بہت زیادہ بیمار ہو گئے، اور وہیں پہ ان کا ڈیمائز ہو گئی۔ ادھر سلمہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ 8 سال وہ یثرب میں رہے شیبہ، اور پھر ہاشم کے بھائی مطلب کو پتا چلا کہ یار مدینہ منورہ میں تو میرا ایک بھتیجا بھی ہے جو ہاشم کا بیٹا ہے، میں ذرا جا کے اس کا حال احوال تو پوچھوں۔ جب مطلب مدینہ منورہ آئے اور انہوں نے سلمہ سے ملاقات کی، انہوں نے کہا کہ یار میں چچا ہوں، ہاشم کا بھائی ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہاشم کو ہم مکہ مکرمہ لے جاتے ہیں، قریش کا سردار ہے یہ، تو وہاں پہ اس کی پرورش کی جائے۔ تو وہ راضی ہو گئیں، اور شیبہ جو تھے اپنے چچا کے ساتھ مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ اب سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے، اور اس کے بہت زیادہ کیونکہ صحرائی سفر تھا، اونٹ کے اوپر سفر تھا، تو ان کا حلیہ کافی بگڑا ہوا تھا جب وہ مکہ مکرمہ پہنچے۔ عمر بھی چھوٹی تھی، اور تھے بھی اپنے چچا مطلب کے ساتھ، تو لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ مطلب ایک غلام خرید کے لائے ہیں، عبد المطلب
यहाँ से शैबा का नाम पड़ गया। लेकिन जो जो अब्दुल मुत्तलिब बड़े होते गए, तो लोगों के अंदर उनकी फैसिनेशन और ज़्यादा बढ़ती गई। इसकी एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि अब्राहा ने जब अटैक किया खाना काबा के ऊपर, तो उस वक्त जब अब्दुल मुत्तलिब गए अब्राहा से डिमांड करने के लिए कि यार हमारे जो मेडोज में ऊंट चर रहे थे, आप ऊंट लेके आ गए, तो अब्राहा ने जब अब्दुल मुत्तलिब को देखा तो ही स्टूड फ्रॉम हिज थ्रोन, उसने वेलकम किया और थ्रोन से नीचे आके अब्दुल मुत्तलिब के साथ बैठा। इतना जबरदस्त वजाहत अल्लाह ताला ने अब्दुल मुत्तलिब को अता की थी। दूसरी बात, अब्दुल मुत्तलिब में जेनरॉसिटी थी। और तीसरी चीज, अब्दुल मुत्तलिब ना सिर्फ इंसानों का बल्कि जंगली जानवरों तक का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे, और पूरे मक्का में मशहूर था कि अब्दुल मुत्तलिब जिस दुआ के लिए हाथ उठा लेते हैं, अल्लाह ताला वो दुआ रद्द नहीं करते। किसी ने कभी इनको बुत परस्ती करते हुए, शिरक करते हुए नहीं देखा। इसलिए मशहूर है कि अब्दुल मुत्तलिब जो हैं वो दीन हनीफ के ऊपर, यानी रसूल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के प्योर रिलीजन को फॉलो करने वाले थे। और एक हैरत की बात आपको बताता हूँ, इवन बिफोर द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल मुत्तलिब रमज़ान के महीने में वो जो केव ऑफ हिरा थी, उसके आसपास माउंट हिरा के ऊपर जाके इबादत किया करते थे। ठीक है, तो ये एक चीज़। और दूसरी चीज़, अब्दुल मुत्तलिब का जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपको रिलेशन बता दूं, हतीम के अंदर अब्दुल मुत्तलिब का एक स्पेशल एक ज्यादा रखा जाता था, एक सीट होती थी, एक दरी होती थी जिस पे अब्दुल मुत्तलिब के अलावा कोई नहीं बैठ सकता था। क्योंकि उनका एक क्योंकि मोर देन 80 ईयर्स उन्होंने मक्का मुकरमा को लीड किया है। बट Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was the only person who was allowed to sit at the place of Abdul Muttalib at his time. एक चीज मैंने आपको और भी बताई थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अ, जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे, कुसई, सॉरी, इनके जमाने में जुरहुम जब निकल गए, ठीक है, तो उन्होंने जाते हुए जमजम के कुएं को डैमेज कर दिया था, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, वो जो भी उसका स्प्रिंग बना था। अब्दुल मुतलिब वाज द पर्सनैलिटी जिनके हाथ पे अल्लाह ताला ने जमजम को दोबारा से रिवाइव करवाया। ख्वाब में इन्होंने देखा कि मक्का मुकरमा में मकाम इब्राहीम के करीब वो एक जगह पे खुदाई कर रहे हैं, तो वो इसको एक साइन समझे, और अब्दुल मुतलिब ने जब वहाँ से खुदाई की तो उन्हें जमजम का वो चश्मा मिल गया। और पता कैसे चला ये जमजम का चश्मा था? क्योंकि जमजम के पानी को प्रेजेंट करने के लिए वहां पे स्पेशल किस्म के यूटेंसिल्स रखे जाते थे। बनु जुरहम ने जाते हुए वो यूटेंसिल्स भी उसी वो जो भी चश्मा था या कुआं था उसी में डाल के उसके ऊपर से मिट्टी डाल दी थी। तो ये दैट वाज अ साइन कि जमजम का कुआं जो है ना वो यही था। तो यहाँ से अब्दुल मुत्तलिब की जो वर्थ थी वो और ज्यादा बढ़ गई। और अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटों में से एक बेटे थे अब्दुल्ला। और इन्होंने एक मन्नत मानी थी कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे 10 बेटे अता किए, इनको मैंने जवान अपनी नज़रों के सामने देख लिया, तो मैं अपने एक बेटे को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करूंगा। तो जब ऐसा हुआ, अब्दुल्ला सबसे छोटे बेटे थे, जब ये 17 साल के हुए तो उन्होंने कहा कि अब मैंने वो मन्नत पूरी करनी है। उन्होंने सब चूंकि नाम लिखे, नाम लिखने के बाद पर्ची उठाई तो अब्दुल्ला का नाम आया। अब हुआ ये कि उनकी जो अब्दुल्ला की जो फूफियां थी, उन्होंने कहा कि ये तो हमारा बड़ा लाडला बेटा है, तो इसको ना करें, आप इस तरह करें, इसकी जगह पे 10 ऊंट जो है ना वो कुर्बान कर दें। तो दो पर्चियां डाली गई, एक पे अब्दुल्ला का नाम लिखा गया, दूसरे पे 10 ऊंट। तो पर्ची उठाई गई तो ऊंट अब्दुल्ला का नाम निकला। फिर ऊंट 20 कर दिए गए, फिर पर्चियां डाली, इस तरह करते करते 100 ऊंट जब उन्होंने कर दिए और फिर पर्ची निकाली तो अब्दुल्ला की जगह पे 100 ऊंट का नाम आया। उन्होंने 100 ऊंट ज़िबा किए और अब्दुल्ला बच गए। और फिर अ, अब्दुल मुत्तलिब ने अब्दुल्ला की शादी जो है वो आमिना बिनते वहाब से करवा दी, ठीक है, जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थ हुई। लेकिन बर्थ के
कुछ अरसा के पहले अब्दुल्ला जो थे ही वेंट टू यसरब, बीमार हुए, वहीं पे उनका डिमाइस हुआ। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न एज एन ऑर्फन। अब रसूलुल्लाह का जो बर्थ हुआ था, इसमें दो तीन मेरिकुलस किस्म के इंसिडेंट्स हुए थे, ताकि अरब के लोगों को साइकोलॉजिकली एक बहुत बड़े इवेंट के लिए प्रिपेयर किया जा सके। अब वो क्या इवेंट्स थे और उनका हिस्टोरिकल ऑथेंटिसिटी क्या है, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। यंग बॉय, 17-18 साल की उम्र के थे। अभी यूं समझ लें कि लेट टीन्स में थे तो, लेकिन कैरेक्टर के बड़े स्ट्रॉन्ग थे, बड़े मशहूर थे अपने साफ सुथरे कैरेक्टर की वजह से। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, इट वाज अ कस्टम, बेटी पैदा होगी तो उसको जिंदा दफना दिया जाएगा। इट वाज नॉट टेकन एज अ मैटर ऑफ प्राइड, इट वाज टेकन एज अ मैटर ऑफ शेम इन मक्का मुकरमा, कि बेटी पैदा हो गई यार। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब और अब्दुल्ला, ये दोनों इस कस्टम से बहुत शदीद किस्म की नफरत करते थे। ये एक बहुत बड़ा एविडेंस है। दूसरा, शराब ना कभी अब्दुल मुत्तलिब ने पी, ना कभी अब्दुल्ला ने पी। ये एक बहुत बड़ा, हालांकि इट वाज कॉमन, जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, इस तरह वो लोग शराब पिया करते थे, ठीक है। तो लेकिन ये दो कभी उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हुए। आपकी अगर वो देख लें, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, ये कभी उनमें इन्वॉल्व नहीं हुए। तो इनके कैरेक्टर्स बड़े स्ट्रॉन्ग थे। दूसरी चीज, इनके अंदर बहादुरी बला की थी, जेनरोसिटी बला की थी। तो ये चीज़ें तो हमें बहुत सी बुक्स में, अरब की पोइट्री में भी नज़र आ जाती हैं। इसके अलावा अब्दुल्ला के हवाले से कोई ज़्यादा डिटेल्स इस वजह से भी नहीं है। एक तो ये कि उनकी एज बहुत कम थी जब उनका डिमाइस हुआ, एंड सेकेंडली उस ज़माने में जो ओरल नरेशंस थे वो चलते तो ज़रूर थे, लेकिन जिसका जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता था उसके हवाले से वो नरेशंस चलते थे। जैसे अब्दुल मुत्तलिब के बारे में हमें बहुत सी डिटेल्स मिलती हैं। वजह उसकी है कि वो 8 साल की उम्र में मक्का मुकरमा में आए और तकरीबन 88 या 90 साल की उम्र तक वो मक्का मुकरमा में रहे। और इसमें से अबाउट 70 to 72 ईयर्स जो अब्दुल मुत्तलिब थे, इन्होंने मक्का मुकरमा को लीड किया है। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम अब्दुल्ला की बात करते हैं, तो हज़रत अब्दुल्ला जो थे, ही डाइड एट वेरी यंग एज, तो इसलिए उनके बारे में हमें ज़्यादा डिटेल्स भी नहीं मिलती। इतना ज़रूर है कि उनका एहतराम बहुत ज़्यादा था, अदब बहुत ज़्यादा था। उनकी बदले में 100 ऊंट कुर्बान किए गए ताकि उनकी ज़िंदगी बचाई जा सके।